Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Happy Ramzan to everyone. Please remember us also in your prayers. Now, welcome in your biology class once again. As we have started with the chapter, and this is our fifth session, we are dealing with the chapter that is biotechnology. In this chapter, we have completed the introductory part, the different tools, as well as the RDNA technology. Now, in this session, we are going to see the application of biotechnology. Now, if we will talk about biotechnology, it is an umbrella term. Umbrella term means it is having a very huge spectrum of the application, as it is a very huge term, or we can say the uses are in a very broad spectrum. We may use it in the medical field, we may use it in industry, for environmental purpose, for plant breeding, for animal purpose, as well as for genomic the things, as well as the microbial purpose. So that is the reason it is called as an umbrella term. So here in this class we have to see the different areas or different fields where the biotechnology is doing a very great work. Okay, so we will deal it one by one. Here we can see the plant biotechnology. There we can deal with tissue culture or the genetically modified crops or other kind of pest resistance crops, etc. If we will talk about industrial biotechnology, here we can work on enzyme. We may create protein by engineering, that is genetic engineering. Then we may take the metabolic engineering also, and we may do the production of metabolites also. Then genomic library, we have seen in different techniques or tools we have already studied. So whole genome, we can take whole genomic sequence, we can store, we can create the libraries, we can work on gene functions. Microbial biotechnology is also dealing with the agricultural work. We can say here we can work on microbial genomics, as well as we can produce biofertilizers as well as biopesticides. जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स देखेंगे, ये भी उसका एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे हम लोग GMOs के बारे में और डिटेल में बात करेंगे. Then environmental problem also we can solve by using biotechnology, that is pollution control, biofuels and bioremediation और biodiversity. ये भी ऐसे सारे टॉपिक्स है जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको कवर कर सकते हैं. Then in animal biotechnology we may do the tissue culture और generative work we can do, और immunity उनकी हम लोग बढ़ा सकते हैं, और GM that is जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी होते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पॉसिबल है GM एनिमल्स क्रिएट करना. देन वी मे ऑल्सो वर्क ऑन genetic level of animals also, that will be coming under gene therapy. So like that ये बहुत ही एडवांस फील्ड हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक फील्ड में एडवांसमेंट ला सकते हैं और ज़्यादा उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. Now let's start with the very first application of biotechnology, that will be related to the health issues or health care. How we may solve health related problem by using biotechnology. किस तरीके से हम लोग जो है different vaccines और उसके अलावा different diseases को cure करने वाले objectives create कर सकते हैं by using biotechnology. So here different disorders are there like anemia, asthma, erythrosclerosis. So इस तरह के जो है वो blood clots, cancer, अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको जो है वो डिजीज़ेस देखने को मिलेंगे, एंड किस तरह का उसके रेमेडीज़ क्रिएट किए जाते हैं, उसको किस तरीके से कौन से एंटीबायोटिक्स या किस तरीके के हम लोग डोसेस क्रिएट कर सकते हैं उसको क्योर करने के लिए. तो यहाँ पे हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रिपरेशंस हम लोग, और वी कैन से द मेडिसिन वी आर प्रिपेयरिंग टू क्योर द डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़. It refers to a medicinal or diagnostic product or a vaccine. This technology has a tremendous impact on meeting the needs of patients. Biotechnology offers patients a variety of new solutions, such as unique, targeted, and personalized therapeutic and diagnostic solutions for organ transplant, stem cell technology, genetic counseling, forensic medicine, gene probes, genetic fingerprinting, and karyotyping. So they are the different outcoming branches of biotechnology जिसका इस्तेमाल करके हेल्थ केयर
or we can say the health system of the human being, we may improve, or we can do it for the betterment of mankind. So like this, biotechnology is having a very huge application in the field of healthcare, we can say. Among healthcare, one important thing is coming, that is human insulin. Insulin is a peptide hormone produced by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. It was discovered by Sir Edward Sharpless Schaffer in the year 1916 while he was studying the islets of Langerhans. About this islets of Langerhans, in your last class you have already studied. Now, if we will talk about this insulin, so it is very essential for the control of blood sugar level. हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है शुगर को कंट्रोल करने का, जिसमें हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का जो इंसुलिन का लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है. बट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इट इज़ अ डिजीज़ इन विच सम पीपल कैन नॉट मेक इंसुलिन देमसेल्फ. तो इस तरीके से ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक कहलाते हैं, जिनकी बॉडी में नेचुरली प्रोटीन जो है वो इंसुलिन सिंथेसाइज नहीं हो पाता. So patient needs to take artificial insulin supplement. Now to overcome this problem, Horuka et al., that is in the year 1977, chemically synthesized a DNA sequence of insulin for two chains A and B and separately inserted into two PBR322, that is a plasmid vector. Insulin production by recombinant DNA technology is designed by Gilbert and Willecomorf in the year 1978. So what is the procedure actually? The genes are inserted by the side of beta galactoside gene of the plasmid. The recombinant plasmid were then separately transformed into E. coli host. The host produced penicillinase plus pre-pro-insulin. Now this insulin is later separated by trypsin treatment. So like this, there is a complete procedure for the preparation of the insulin, that is by using rDNA technology. So here, by using this method, the gene will get transferred, or it will get inserted by the side of beta galactoside, that is beta gall. Here you can see. So here it is transferred into the plasmid, and then the recombinant plasmid were then separately transformed into E. coli host. Then the host will produce penicillinase. Okay, and then after this it may get purified by the trypsin treatment. So like this complete procedure के through human insulin create किया जाता है. उसके बाद उसमें RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको प्लाज्मिड में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. उसको कट करके बैक्टीरिया के अंदर उसको इंसर्ट करके इस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है. एंड देन उसके बाद जो कि DNA RDNA टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर है वो कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करके वहाँ पे जो है वो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है. तो इस तरीके से आर्टिफिशियली वी कैन से के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें के प्लाज्मिड ट्रांसफ़र, देन उसके बाद DNA के सैंपल को कट करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, एंड देन उसके बाद उसको ज्वाइन करना बाय DNA लाइगेज, जो कि एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, दैट विल बी द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. एंड इसके बाद इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करना बैक्टीरियल DNA में, जिसमें म्यूटेशन हो और वहाँ पे ओन उसके जो है वो लैक्जेट जीन्स प्रोड्यूस कर जाएं. एंड जब ये लैक्जेट जीन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो है वो म्यूटेशन के थ्रू वहाँ पे ट्रांसमिट होने लगता है. एंड देन उसके बाद बहुत सारे हमको जो है वो इस तरह के सेल्स मिलेंगे जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इंसुलिन का आर्टिफिशियल हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी. सो इट इज़ अ वेरी ट्रिमेंडस इन्वेंशन वी कैन से इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बिकॉज जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है. आर्टिफिशियली उनकी बॉडी को ये सप्लीमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ वैक्सीन प्रोडक्शन. A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity against a certain disease. Usually, a vaccine consists of a biological agent that represents the disease-causing microorganism. If we will talk about vaccine, तो ये वैक्सीन हम लोगों को right from our childhood
वी आर डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीनेशन जो स्टार्ट होता है आफ्टर द 5th डे ऑफ द बर्थ। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का हमारी बॉडी में काम करता है। तो आर्टिफिशियली भी वैक्सीन क्रिएट किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे वैक्सीन क्रिएट किए जाते हैं। यूजुअली जो वैक्सीन होते हैं उसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वायरस है, वायरस वेक्टर है, और इस तरह के अलग अलग वैक्सीन वेक्टर्स का इस्तेमाल करके वैक्सीन प्रोडक्शन किया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक वायरस है दैट इज़ द वायरस वेक्टर, दैट इज़ द एडिनो वायरस, अल्फ़ा वायरस जिसको बोलेंगे। और ये इसके अंदर हम लोगों को आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंज़ा को फाइट करने वाला हमको जो है वो एक वैक्सीन बनाना है। तो वी हैव टू टेक द इन्फ्लुएंज़ा वायरस जीन, जो एंटीडोट जिसका हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर HA दैट इज़ द जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन होता है वो उसके अंदर मौजूद है। तो आरडीएनए का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा वायरस वेक्टर वैक्सीन हम लोग बनाएंगे जो एक्सप्रेस कर सके HA प्रोटीन को। तो इस तरीके से यहाँ पे आफ्टर द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ वैक्सीनेशन और वैक्सीन प्रोडक्शन एक ऐसा वैक्सीन तैयार होगा जिसके अंदर एबिलिटी होगी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस तरीके से जो है वो वायरल वेक्टर का और डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स का, यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया भी एज अ बायोलॉजिकल एजेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, और इस वैक्सीन के इस्तेमाल से हमको उस पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट करने की एक इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी में एंटीजेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई फॉरेन एंटीबॉडी हमारी बॉडी में इंसर्ट होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू उस एंटीबॉडी को फाइट करके हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू उसको बॉडी के बाहर ढकेल दिया जाता है। एज सेम जैसे कि पोलियो का हमको हर एवरी मंथ वी आर गिविंग पोलियो डोज टू अवर चाइल्ड, बट वी आर गिविंग द वायरस टू द चाइल्ड। तो इस तरीके से जो है वो फॉरेन अगर वायरस आता है बॉडी में तो वो उसको फाइट करके वो उसको इराडिकेट कर देगा। तो इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और हमारी बॉडी जो है वो सेफ हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज़ से। सो वैक्सीन्स हैव एलिमिनेटेड स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड अदर डेडली डिजीजेस फॉर द लास्ट सेवरल decades, but by using biotechnology we may made advancement in vaccination by making recombinant vaccines that have the potential to eradicate non-communicable diseases like cancer. Now if we will take the naked DNA vaccine, viral vector vaccine and plant derived vaccines, they are also found to be most effective against a number of bacterial and viral disorders. Actually recombinant vaccines क्या है? The vaccines are produced during using recombinant DNA technology or genetic engineering are called as recombinant vaccine. Recombinant vaccines are those in which genes for desired antigen of a microbe are inserted into a vector. अभी हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा का जो एग्जाम्पल देखा, डिफरेंट स्टेजेस इसमें होती होती हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर दैट इज़ फर्स्ट यूजिंग द इंजीनियर्ड वेक्टर, एक वैक्सीन वायरस हमको चाहिए होता है जिसमें एक्सप्रेस डिजायर्ड एंटीजन एज अ वायरस। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमको फॉलो करनी होती है दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन बाय डिलीटिंग अ पोर्शन ऑफ DNA such that they are unlikely to revert and can create an attenuated live vaccine. तो इस तरीके से जो live attenuated vaccine होगी that can also be produced by a reassortment of genomes of virulent and अवायरुलेंट स्ट्रेन। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का इस्तेमाल करके रीअसॉर्टमेंट और अवायरुलेंट स्ट्रेन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर हम लोग डिजीज़ के लिए वैक्सीन बना रहे हैं उस वैक्सीन की हम लोग बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी उसकी रेसेस जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो इस तरीके से वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत हेल्पफुल हो जाती है मैनकाइंड के लिए। These are the different steps we can say for the production of vaccine. किस तरीके से पहले सेल कल्चर किया जाता है, उसके बाद उस कल्चर को इनोकुलेट किया जाता है, यानी कि वायरसेस की कॉलोनीज़ बढ़ाई जाती है, देन उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, देन बल्क में उसको जमा किया जाता है एंड प्यूरिटी के लिए उसको चेक किया जाता है, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन प्रॉपरली उसके अंदर सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं वो चेक किया जाता है, देन उसके बाद उसमें फिल करके उसको इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि क्वालिटी चेक की जाती है उसकी, एंड देन उसके बाद लेबलिंग एंड पैकेजिंग की बारी होती है।
इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन सबसे अच्छी क्वालिटी की है, सबसे ज़्यादा असर करने वाली जो वैक्सीन होती है वो ओरल वैक्सीन्स को माना जाता है, बिकॉज द लेटेस्ट हॉटस्पॉट इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन रिसर्च इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन विच कैन बी टेकन ओरली, बिकॉज ओरल चीज़ें जो है वो ज़्यादा ईजीली बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर सकती है, एंड सर्टन पैथोजेंस ऐसे होते हैं दैट फाउंड टू बी एक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड ओरली। हम लोग देखते हैं कि हमको कभी सर दर्द होता है या हमको कोई नॉर्मली छोटा मोटा पेन होता है तो हम लोग कोई पेन किलर ले लेते हैं तो फ़ौरन हम लोगों को जो है वो आराम आ जाता है। तो इस तरीके से ओरली जो चीज़ ले ली जाती है वो बॉडी हमारी जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करती है। सो द जीन करस्पॉन्डिंग टू सच प्रोटीन इज़ आइसोलेटेड एंड अ जीन कंस्ट्रक्ट इज़ प्रोड्यूस। तो इस तरीके से जो है वो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन अ प्लांट जीनोम। हम लोग प्लांट के ऊपर भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ सच इम्यूनोजेनिक प्रोटीन इन पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ एक्सप्रेस्ड। ये एक बहुत ही एडवांस काम है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट के अंदर, प्लांट के जीनोम के ऊपर काम करके ऐसे इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स प्लांट के अंदर ऐड किए जाते हैं जो प्लांट के अंदर एक्सप्रेस हो जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स को जब अगर कोई एनिमल्स और इफ़ द ह्यूमन बीइंग इफ़ दे विल फेड ऑन सच प्लांट्स सो द पर्सन बिकम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्टन पैथोजन। सो सच काइंड ऑफ वैक्सीन इट इज कॉल्ड एज एडिबल वैक्सीन, यानी कि प्लांट के अंदर वो पर्टिकुलर वैक्सीन इंसर्ट कर दिया। एंड नॉर्मली जैसे हम लोग प्लांट सोर्स जो खाते हैं वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो उस तरीके से अगर हम लोग उसको खा लें तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी और वी कैन से वहाँ पे हमको जो है वो वैक्सीनेटेड हम लोग हो जाते हैं, एक पैथोजन से फाइट करने की हमारे अंदर एक एबिलिटी आ जाती है। तो इस तरीके के वैक्सीन जो होते हैं वो एडिबल वैक्सीन्स कहलाते हैं। सो इस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडिबल वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एंटीजन जीन्स हम लोग जो बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो एंटीजन प्लांट्स बनते हैं और एडिबल प्लांट्स बनते हैं, उस एडिबल प्लांट्स को हम लोग ईजिली ग्रास्प करके या उसको कंज्यूम करके हमारी बॉडी में ओरल इम्यूनिटी हम लोग अपनी डेवलप कर सकते हैं। एंड ओरल वैक्सीन इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। Sometimes taking medicine orally for some people may be a very difficult task. So इसका भी solution बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मिल जाता है, जहाँ पे हमको बहुत सी कड़वी दवाइयाँ या इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली व्हेन वी विल कीप द वैक्सीन इन आवर माउथ एंड इट विल गेट मेल्ट ऑन द स्पॉट एंड हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो जो है वो वैक्सीन शामिल हो जाती है एंड देन ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसको ग्रास्प कर लेती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही एडवांसमेंट है वैक्सीन प्रोडक्शन में, जिसको माउथ वाटरिंग वैक्सीन भी बोलते हैं। So it is an exciting invention. It is the production of melt in mouth, that is the vaccine that can be administered by placing them simply under the mouth or under the tongue, and it delivers into the bloodstream. The most important example is the production of a flu vaccine by bacillus, which melt in the mouth. So it is the tremendous benefit of such vaccine that can be giving the comfort of administration, or it is also very at the low cost and very ease for the storage. कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती इसमें, ना ही इसकी अपटेक में कोई डिफ़िकल्टी होती है, ना ही कोई स्टोरेज पर्पस के लिए इसमें डिफ़िकल्टी होती है। सो इट इज़ अ वेरी ट्रिमेंडस वर्क वी कैन से इन द वैक्सीन प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द मेल्ट इन माउथ टाइप ऑफ वैक्सीन्स। Now we will see the next application of biotechnology, that is in the field of agriculture. Agriculture is a field in our India that we are most of us are depending on agriculture. So how we can use biotechnology in agriculture we will see here. The most advanced work of biotechnology in the field of agriculture is the production of GMO, that is the genetically modified organism, or we can say plant here. So this genetically modified organism or genetically modified plant is having the power, or we can say the capability of
डिजीज़ रेजिस्टेंस एज वेल एज द पेस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी। ये बहुत ही एडवांस टाइप के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है बीटी कॉर्न का। तो बीटी इज़ नथिंग बट बैसिलस thuringiensis। सो अबाउट दिस बीटी प्लांट एज वेल एज ऑफ अबाउट GMO वी विल सी इन मच डिटेल वे, और इसकी एक अलग फील्ड है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सो टू प्रोड्यूस GMO इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो है वो प्लांट में पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप क्रिएट करना, ऐसी प्लांट ऑटोमेटिकली जिसके अंदर पेस्ट का कंट्रोल हो, यानी कि कोई पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या अदर टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र्स वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली पेस्ट को रेजिस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत मरतबा आपसे जो है वो इससे पहले लास्ट या कभी जिक्र आया होगा चैप्टर्स में, तो मैंने जिक्र किया था कि कैसे प्लांट को जब जो कैटरपिलर या जो भी इंसेक्ट होता है वो आके उसको जैसे ही बाइट करेगा लीफ को, तो वो उसके अंदर का जो गॉल जीन होता है वो बॉडी के अंदर उसके प्रोड्यूस हो जाता है, एंड देन उसके बाद उसकी बॉडी स्वेल्व हो जाती है, और फिर वो पेस्ट जो है वो फर्दर उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली एक जो है वो कंट्रोल हो जाता है प्लांट के अंदर। देन इसके अलावा जो है वो BT, as just I said कि BT stands for Bacillus thuringiensis। तो like that many BT crops are there, जिसके अंदर the most famous example is BT cotton। यानी कि यहाँ पे भी जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप होगी जिसमें कोई पेस्ट का ख़तरा नहीं होता। सेम वे हम लोग बोल सकते हैं कि BT ब्रिंजल इज़ ऑल्सो अ वेरी एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे भी बैसिलस thuringiensis का इस्तेमाल करके पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है प्लांट का, और इसकी वजह से ये जो BT ब्रिंजल होते हैं ये ऑटोमेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इसके लिए फार्मर को ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वन मोर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस। सो इट इज़ ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा राइस है, सेम जैसे राइस हम लोग यूज़ करते हैं वैसा ही होता है, बट इसकी ये क्वालिटी होती है कि इसके अंदर विटामिन A का जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। इट मीन्स कि अगर किसी को विटामिन A की डेफिशिएंसी है तो अगर वो गोल्डन राइस को कंज्यूम करता है तो बाय यूजिंग सिंपल राइस, गोल्डन राइस, उसकी विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो दूर हो जाती है। तो उसका जो गोल्डन कलर है दैट इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विटामिन A। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बायोफोर्टिफाइड प्लांट है। अब ये बायोफोर्टिफाइड क्या है इसके बारे में हम लोग आगे इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हो जाता है टिश्यू कल्चर। आपने टिश्यू कल्चर के बारे में तो सुना ही होगा। टिश्यू कल्चर इज़ ऑल्सो वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। सॉइल की बजाय टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करके वहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। इट इज़ यूज्ड एज अ माइक्रो प्रोपैगेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे प्लांट को हम लोग प्रोपैगेट करते हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। सो इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ वी कैन से best method for storing germplasm and maintaining a specific genetic type, that is the clone। बहुत सारे क्लोन हम लोग एक ही प्लांट के जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अबाउट दिस टिश्यू कल्चर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको और डिटेल में कैसी टेक्निक है, क्या उसके प्रोसीजर है, किस तरीके से टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में, बहुत डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे उस वक्त टिश्यू कल्चर को डील करेंगे। यूजुअली ये जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है इट इज़ यूज्ड इन दोज प्लांट विच प्रोड्यूस recalcitrant सीड्स और दे आर प्रोड्यूसिंग हाईली वेरिएबल सीड्स। तो अब ये जो recalcitrant एक टाइप की सीड होती है जिसके अंदर मॉइस्चर का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। सो ये एक तरह का सीड है वी कैन से जिसमें मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट उसका हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे आके उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है एंड ड्रास्टिकली इट विल गेट रिड्यूस्ड। सर्वाइवल उसका जो है वो बहुत थ्रेट में आ जाता है एंड दस प्रेजेंट डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज। यूजुअली जो है वो सीड के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है एंड बाय यूजिंग दिस मॉइस्चर ओनली उसको स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। बट जब ये मॉइस्चर नहीं होता उस पॉइंट पे ऐसे जो सीड होते हैं वो recalcitrant कहलाते हैं। सो हियर सब सेलुलर डैमेज ऑफ सीड अकर अकम्पनीड
by consequent loss of viability when it will get dried. जब सीड वाइबल होता है उसी कंडीशन में उसकी जर्मिनेशन और नेक्स्ट जनरेशन उससे मिलना पॉसिबल होती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ऐसे प्लांट से ग्रो करने के लिए टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वी कैन से इट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक वर्क वी कैन से इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को सर्वाइव किया जा रहा है या बचाया जा रहा है जो थ्रेट पे थे, और वी कैन से द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स जो है उसको बचाया जा रहा है। बिकॉज टिश्यू कल्चर की टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बट प्रोसीजर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। बट टेक्निक इतनी ड्रास्टिक है, इतनी वंडरफुल टेक्निक है ये, जिसके थ्रू ऐसे ऐसे स्पीशीज़ हम लोग प्लांट की प्रिजर्व करके रख सकते हैं जो कि अभी थ्रेड पे है या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो प्लांट की है। तो वी कैन से कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्रीकल्चरल में वर्क यूज़ कर सकते हैं। सो हियर वी विल स्टॉप because all applications if I will teach you in one class, so that you may get confused. Still two more applications are there. One is gene therapy and the second one is GMOs, that is production of GMOs, genetically modified organism. तो उसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग जो भी एप्लीकेशंस अभी मैंने आपसे डिस्कस की हूँ, यू गो थ्रू दोज एप्लीकेशंस वेरी नाइसली by using your PDFs of the टेक्स्ट बुक। तो आप उसको अच्छे से रीड करो, कोरिलेट करने की कोशिश करो, स्पेसिफिकली इंसुलिन प्रोडक्शन एज वेल एज वैक्सीन प्रोडक्शन, बिकॉज ये जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एज़ पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है, गो थ्रू इट, फाइंड आउट योर डाउट्स, एंड अगर आपको कोई डाउट उसके अंदर आता है तो यू कैन डिस्कस योर डाउट विथ मी। आप जितना उसको रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज ऑल्सो। आप दूसरा अगर आपका कोई रेफरेंस मटेरियल है आपके पास तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो और रेफ़र कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So you just go through the content, and inshallah when next time I will come online, that time I will teach you about the next two applications. So till that please go through the content and take care. Assalamu alaikum.